Hello and welcome to a very bright and sunny day in Ontario, Canada. And मेरे सामने है the 2025 Volkswagen Tiguan in pearl blue color. माफ कीजिएगा गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि this is not the perfect weather to keep your car clean and I got it from my local Volkswagen dealership. तो चलिए इस कार के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गाड़ी की स्टाइलिंग की एंड मानना पड़ेगा कि दिस लुक्स क्वाइट मस्कुलर एंड क्वाइट वेल बिल्ट कार. अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन से तो जो हुड हाइट थी वो थोड़ी लोअर थी एज कंपेयर टू दिस वन. एंड अगर हम बात करें फ्रंट स्टाइलिंग की तो आई एम नॉट अ बिग फैन. मुझे लगता है कि जो पहले वाली जनरेशन थी वो बेटर लगती थी बट दिस इज व्हाट दे वेंट विद. एंड इफ यू कैन सी दे स्टिल गॉट द प्लास्टिक क्लैडिंग over the wheel arches in the front and in the side. They still got the roof racks and काफ़ी sturdy. काफ़ी अगर हम बात करें तो styling की तो keyless entry and still plastic. ऐसा लगता है कि they have used cloth but soft cushion here. Plastic. Soft cushy material and this is the same cloth, same fabric as this and as this. So let me just get inside. Quite some space. Under thigh support is decent and यहाँ पे storage दी गई है. This is your light control, your air vents and काफ़ी एक variety of style. अगर मैं बोलूँ इंटीरियर में तो यू हैव योर ब्लैक मटेरियल, ब्लैक स्क्विची मटेरियल जो कि डैशबोर्ड के ऊपर भी है. देन यू हैव योर फैब्रिक एंड योर पियानो ब्लैक स्टाइल एक्सेंट जो कि यू कैन सी योर ब्रश्ड एल्यूमिनियम लुक जो कि प्लास्टिक है. अगेन योर प्लास्टिक एंड फैब्रिक अगेन प्लास्टिक, योर स्क्विची मटेरियल हेयर. अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स गुड एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज फिजिकल बटन्स. But these are the only button you will get and काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी सिर्फ इसकोज. ये है आपका स्टीयरिंग माउंटेड गियर सेलेक्टर. So this is how you control the ये है पार्क बटन and you can just toggle it to change the gear. So काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है and रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है बट मेरी स्टिल कंप्लेन यही है कि you cannot, अगर मैं लोगो हाइड करूँ तो it looks like every other car. क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन जो है बड़ी स्क्रीन्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट इंटीग्रेट देम वेल. लेट्स गो टू द बैक सीट्स. तो बैक सीट की अगर बात करें इफ इट हैज गॉट इनफ लेग रूम, यस इट हैज. मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच एंड फ्रंट की सीट है पोजीशन है वो मेरी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से एंड आई हैव गॉट सम क्वाइट टॉल लेग्स. सो आई स्टिल गॉट प्लेंटी ऑफ leg room and headroom. Under thigh support is decent but you can also tuck your feet inside, so this is quite comfortable. And let's sit in the middle and this is not the most comfortable sitting position but small rides के लिए you can manage and you can squeeze in with 2 other passengers. This is how it looks like from this angle and अगर हम बात करें तो this is a shiny chrome piece, a shiny black accent and this is your wiper. The coverage area as you can see is quite visible in that and power operated, power opening tailgate नहीं है so you have to open it manually and this is the space. So अगर सबसे पहले हम बात करें तो you have a full spare wheel, you have your jack and your tools to change the tire. यहाँ पे storage space दी गई है, यहाँ पे storage है and this is also some storage. You have your light here, your anchor points and hooks और seat में भी anchor points and hooks दिए गए हैं. and एक convenience की मैं अगर बात करूँ तो these are the seat folding latches and you can, as you can see, this is, it shows, it signifies that you're trying to open the seat or fold the seat. So it happens manually with a wire so you cannot unfold your seat automatically, so you have to just go in and do that. Let me just
open the door. Let me give you a walk around of the car. So this is how it looks from the side. Side में मुझे लगता है कि सारी crossover एक जैसी ही लगने लगी है. The similar shape, similar size and similar thing, similar accent pieces. और front की अगर मैं बात करूँ तो this goes with the design language that Volkswagen is going with. ओके चलिए कार को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोनों स्क्रीन रेजोल्यूशंस, स्क्रीन के फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़. तो पेडल दबाना है एंड यू हैव टू प्रेस द स्टार्ट बटन. दिस इज हाउ यू आर ग्रेटेड विद इट. इट्स अ गुड रेजोल्यूशन, सीट बेल्ट की चाइम एंड दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर temperature and easy enough. It is not a hassle. You can sync your temperature. You can just make it auto. You can control the fan speed. और ये मेरी एक शिकायत है कि fan speed यहाँ से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, just like the temperature. But auto, your heating seats, 3 levels of your heating seat. There is no massaging seat, and you can. This is the home screen. Start stop option, traction control. You can change it. Your assist system, music and your radio. यहाँ से आप अपना ट्यून कर सकते हैं म्यूजिक एंड साउंड को. दिस इज द नोटिफिकेशन पैनल. यू कैन मेक इट ब्राइट एंड डार्क मोड और लाइट मोड दिया गया है. तो ये है इसका लाइट मोड, which looks better than the dark mode, I would say. So this is rear window defogger. D screen से कंट्रोल होता है. मैक्स विंडशील्ड आपकी स्नो मेजर करने के लिए. दिस इज हाउ यू कंट्रोल एंड AC on and off भी आप स्क्रीन से. So everything is integrated in the screen. That is the other air vent. So let me now talk about the toggle switch. So you can control the volume from here, but you can also control the drive mode selector. So off-road, custom sport, comfort, eco and snow mode. So snow mode काफ़ी ज़रूरी है if you are living in the northern hemisphere or near the poles. एक चीज़ जो मैं दिखाने वाला था आपको, let me show you an interesting thing जो Volkswagen ने करी है अपनी कार को एक muscular shape देने के लिए. So this is a tall hood. So this is a tall hood and आप सोचोगे कि हाँ अंदर सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन let me show you something interesting. तो देखिए कि these are the anchor points. So this was the car telling me कि क्यों बाहर से गाड़ी को अंदर आ जाइए. जो anchor points dual mounted है और this is how much space engine और उसके ऊपर इसको बनाया गया है ताकि कार को एक मस्कुलर स्टैंस, एक टॉल हुड किया जाए. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन द इंजन बे. सो लुक्स दूर से लग रहा है कि यहाँ से आप नहीं देख सकते. एक कटोरी वाला शेप दिया गया है तो ये एक विजुअल ट्रिकरी के लिए सब क्या करना. तो चलिए लेट मी शो यू कि हाउ इट ड्राइव्स. और लेट्स बकल अप, लेट्स गो. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है, दूसरा इट इज क्वाइट कंफर्टेबल. बम्प्स को इजीली हैंडल कर लेती है एंड यू हैव क्वाइट एन अपराइट पोजीशन जो कि एक SUV में होनी चाहिए. एंड और ये वाली फीलिंग जो मेरा मानना है कि लास्ट जनरेशन में मिसिंग थी. और आई एम क्वाइट हैप्पी कि इसको एक अपराइट स्टैंस मिला है जिससे कि आपकी विजिबिलिटी रियर की, फ्रंट की और साइड की इंक्रीज हुई है, इम्प्रूव हुई है. राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल का आपकी कंट्रोल स्टैंस आपको मिलता है. हाइट फैक्टर से आपको काफ़ी विजिबिलिटी यू कैन
सी की काफ़ी बड़ी विंडोज है, तो फ्रंट रेयर और साइड विजिबिलिटी काफ़ी है इसकी एज कम्पेयर टू द लास्ट कार, बिकॉज जो लास्ट जनरेशन थी थोड़ा नीचे, थोड़ा लो स्टैंड है उसका, एंड उसमें बैठने के बाद आपको लगता है कि यू आर सिटिंग इन अ सेडान, बट इसमें आपको एक क्रॉसओवर, एक एसयूवी वाली वाइब आती है, एंड बट नो सनरूफ, सो still plenty of headroom as you can see, and काफ़ी एक कमांडिंग स्टैंस है, काफ़ी एक कमांडिंग राइट पोजीशन है, और it is eating bumps quite easily. And let's change the drive mode to sport, and let's see if it's okay. Yes. You must have felt that acceleration. So accelerate करने में it is quite good. Again. तो स्पोर्ट मोड में जो मुझे डिफरेंस लगा है कि it is maintaining a lower gear and it is going on high RPM, so this is how it is supposed to be, कि एक लो गियर में हायर RPM पे, so अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो इसको गियर नीचे शिफ्ट करने की बजाय it can just go, और this is the benefit of that, and I can feel the difference between the comfort and the sport mode. So the जो throttle response है वो काफ़ी increase हो जाता है, अगर on the contrary अगर हम बात करें कंफर्ट मोड की और इको मोड, स्नो मोड, सो दोनों मोड्स में जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम हो जाता है, एंड आपको फील होता है कि अगर आप पेडल प्रेस करते हो तो इट डज नॉट गो राइट अवे, और यही बेटर होता है अगर हम बात करें स्नोई कंडीशंस की. यू कैन फील द बम्प्स, एंड लेट मी जस्ट चेंज इट टू